शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। सबसे बड़ी खबर यह है कि असहिष्णुता के मुद्दे पर आमिर खान के बयान से सियासत से लेकर बॉलीवुड तक भूचाल आ गया है। आमिर खान ने कहा है कि उनकी पत्नी ने माहौल बिगड़ने पर देश छोड़ने तक की बात कही थी। आमिर खान ने क्या कहा और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, जरा ध्यान से देखें आप। I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will lead your answer. Do I agree with that? I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of... More than there was... Earlier? Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. That does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You know, you feel low. You feel, you know, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. Yeah. आमिर दिल्ली में आयोजित रामनाथ गोयनका अवार्ड्स में शामिल थे। उनसे देश में छिड़ी असहिष्णुता की बहस पर राय मांगी गई तो आमिर ने अपनी फिल्म निर्देशक पत्नी किरण राव का हवाला देते हुए कहा कि हाँ, अब उन्हें भी फिक्र होने लगी है। राजा हिंदुस्तानी को अब हिंदुस्तान की फिजाओं में वो बात नजर नहीं आती जो पहले कभी उन्हें महसूस हुआ करती थी। A lot of the creative fraternity was protesting because of the growing discomfort that they felt, or the growing atmosphere of intolerance that they felt around them, a growing sense of insecurity and disappointment with that. And as a result, that was their way of showing that they are not happy with the situation. As an individual myself, as a part of this country, as a citizen, you know, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I've also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. And you know, it's for any society, it's very important to have a sense of security. आमिर खान कहते हैं कि देश में बुरे हालात पहले भी रहे, लेकिन किसी और बुरे दौर की दुहाई देकर, दूसरों की गलती गिनाकर कोई अपने गलत कामों से बच नहीं सकता। Where one political party, in this case the BJP who's ruling right now, is accused of various things, and they say, but what happened in 1984? But that doesn't make right what's happening now. And what happened in 84 was disastrous. You know, what happened in 1984 was horrendous, and what is happening, you know, at other times also through the ages, whenever there is a violent act, when an innocent person is killed, whether it's even one single person or a collection of people, that's very unfortunate. And in these unfortunate moments, these are the moments that we look to our leaders to take a strong step, whether they're on the state level or at the center, make statements which are reassuring to us as citizens of the country. That's what we look for. Yeah. आमिर की ये बेबाक बातें एक ऐसे मुद्दे पर थीं जिस पर इन दिनों पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। ये बहस कला, साहित्य और सिनेमा से लेकर सियासत तक में चल रही है। ऐसे में आमिर खान ने देश के मौजूदा हालात पर सवाल उठाकर इस बहस को और गर्म कर दिया है। आज तक ब्यूरो। बगैर खर्चा के चर्चा में रहना आता है, ये कुछ लोग कह रहे हैं आमिर खान के लिए। खैर, आमिर खान के बयान पर कांग्रेस बीजेपी दोनों ने विरोध किया है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज से पूरे मुद्दे पर बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। शाहरुख खान के बाद एक और फिल्म स्टार आमिर खान ने भी इंटॉलरेंस को लेकर के बोला है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता साक्षी महाराज जी। साक्षी जी, आमिर खान ने कहा कि यहाँ डर लगता है इस देश के अंदर, और उनकी पत्नी कहती थी कि कहीं और चले जाएं देश छोड़कर। सबसे पहले तो जनाब आमिर खान साहब से मैं कहूँगा, ये देश उनका है, गंगा जमुनी संस्कृति का देश है, निर्भय होकर उन्हें रहना चाहिए। यहाँ अब किसी औरंगजेब का शासन नहीं है।
या नरेंद्र भाई मोदी का शासन है, पर मुझे दुख है। मुझे लगता है कि ये शब्द आमिर खान साहब के नहीं हैं। आमिर खान साहब को एक अच्छा इंसान समझते हैं हम। किसी के बहकावे में किसी को लाभ पहुंचाने के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से उनके शब्द हैं, और कहीं अगर वास्तव में आमिर खान साहब के ये शब्द हैं जो फिल्मों के माध्यम से 500 करोड़ रुपया साल इस देश में मनाते हैं, यहाँ के करोड़ों करोड़ों हिंदू उनके फ़ैन हैं, उनकी फिल्मों को देखते हैं और उनसे वो पैसा कमाते हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की बातें आमिर खान साहब को नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के कहने से कहा है तो शब्द वापस लेना चाहिए। अगर उन्हें अपने दिल से कहा है तो फिर गंदे दिल के इंसान है आमिर खान साहब। किसके कहने से कहा, किसके ऊपर शक है आपको कि कौन यूज़ कर रहा है उनको? हिंदुस्तान में लोगों का राजनीतिक धरातल समाप्त हो गया है और इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे कि हिंदुस्तान में औरंगजेब का शासन हो गया हो। मुझे लगता है लोगों को औरंगजेब का शासन चाहिए, कंस का शासन चाहिए, रावण का शासन चाहिए, मोदी जैसे राष्ट्रभक्त का शासन नहीं चाहिए। सारा विश्व मोदी की जय जयकार कर रहा है और हम पर असहिष्णुता का आरोप लगाया जा रहा है। हम वो लोग हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे मोदी जी लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, हम सबके कल्याण की बात करते हैं। गजब की बात है। आज तो साक्षी महाराज भी खुद को टॉलरेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, पूरा विवाद जब आगे बढ़ा है तो कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी आमिर खान के बयान का विरोध किया। देश के अंदर अगर एक वाकया ऐसा हो गया है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आमिर खान की पत्नी उनसे कहें कि हम इनसिक्योर्ड हैं इस देश के अंदर, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इनसिक्योर्ड है। इस तरीके के बयान को मैं बिल्कुल उचित नहीं मानता। अनुपम खेर कह रहे हैं आमिर चिंता मत करें आप, ऑल इज वेल। आमिर खान के बयान पर प्रतिक्रिया के रूप में ट्वीट की बाढ़ आ गई है। कौन कौन क्या क्या ट्वीट कर रहा है, आइए देखते हैं। आमिर के बयान पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का ट्वीट देखिए। कितनी बेशर्मी से इजहार करते हैं ये खराब जो व्यापार करते हैं। अगर मिल जाए दाम इनको तो माँ का आंचल भी दागदार करते हैं। यह है आमिर के समर्थन में केजरीवाल का ट्वीट। आमिर खान की तरफ से बोला गया हर शब्द सही है। खुलकर बोलने के लिए मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। बीजेपी को धमकी देकर आवाज बंद कराना छोड़ केंद्र सरकार ठोस कदम उठाए ताकि लोगों के बीच सुरक्षा का भाव पैदा हो सके। बीजेपी ने आमिर खान के बयान का विरोध किया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल आमिर के हर शब्द को सही मानते हैं। आमिर के बयान पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का ट्वीट देखिए। कितनी बेशर्मी से इजहार करते हैं ये खराब जो व्यापार करते हैं। अगर मिल जाए दाम इनको तो माँ का आंचल भी दागदार करते हैं। यह है आमिर के समर्थन में केजरीवाल का ट्वीट। सीधे चलते हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेता और अपने आप में एक बड़े फिल्म स्टार परेश रावल हमारे साथ हैं। परेश रावल जी, क्या कहना है आपका आमिर खान ने जो कहा है उस पर? हम क्या कहेंगे, आमिर साहब ने कह दिया, हमको जो कहना तो मैंने ट्वीट कर दिया, और क्या कहेंगे। देखिए, बॉलीवुड की अगर बात की जाए तो आपकी ही फर्टर्निटी में इसको लेकर दो ओपिनियंस दिख रहे हैं। एक बहुत ही अगेंस्ट में है और एक प्रो में है। आपका अपना स्टैंड क्या है? देखिए, मैं इतना कहूंगा, हिंदू समाज या जिसे अब मेजोरिटी कहते हैं वो हमेशा टॉलरेंट रहती है। नंबर 1 उसका उदाहरण ये है कि मैंने ओ माय गॉड की, मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। पीके बनाई आमिर साहब ने, उन्हें भी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। हालांकि पीके वर मच बिगर हिट देन ओ माय गॉड। तो पीके का एक्सेप्टेंस, आमिर खान का एक्सेप्टेंस इसी हिंदू सोसाइटी में, इसी हिंदू मेजोरिटी में सबसे ज्यादा रहा। कभी वजूद ही नहीं बनता कि इनटॉलरेंस वाली बात है। नंबर 1। नंबर 2 और दूसरी बात यह है कि सत्यमेव जयते जैसे प्रोग्राम बनाने वाले आमिर साहब को इतना ही करना चाहिए कि जहाँ जहाँ कुछ कठिनाइयां हैं, जहाँ जहाँ कुछ कमियां हैं, एक सुलझे हुए नागरिक की हैसियत से, एक समझदार, इतने बड़े स्टार है उसकी हैसियत से उसको संवारना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए। ये नहीं कि मैं देश छोड़ के चले जाने की बात। और दूसरी बात यह है कि ये उन्होंने कहा उनकी बीवी जी की भावना है, ये उनकी क्या भावना है उन्होंने अभी तक बताई नहीं है।
ये टेक्निकल मुद्दा है, थोड़ा हमको भी समझना चाहिए। उन्होंने कहा किरण जी की भावना है कि देश छोड़ के चले जाए, तो कौन से देश में जाएंगे? भारत से अच्छा देश कहाँ पे, वो तो ढूंढ ले जिसको ढूंढना है वो। क्योंकि मौलाना मदानी जी ने भी कह दिया कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर देश कोई है ही नहीं। और इस तरफ मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने भी कह दिया है कि भैया मोदी जी कौमवादी नहीं है, अभी इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या चाहिए। और फिर छोटी छोटी घटनाएं जो होती रहती है, छोटी माने कि इधर यहाँ कोने में हो गई, वहां कोने में हो गई, तो आप वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये बार बार इशारे पे लेना, निशाने पे लेना बीजेपी को, ये मैं समझता हूँ थोड़ा गलत हो जाता है, ज्यादती है। प्रॉब्लम तो हर सोसाइटी में, हर समाज में, हर देश में होते हैं, तो उसका तो निवारण करना चाहिए, उसका तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये नहीं कि भाई देश छोड़ के चले जाऊं। देश छोड़ना तो बड़ा आसान है, मोदी जी ने कहा था ना, देश के लिए मरना बड़ा आसान है, देश के लिए जी के दिखाओ। शुक्रिया परेश रावल जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका। देश के लिए जी के दिखाओ। निसगम मनी पम ग नि पम ग स नि पम नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।